सब नॉलेज। तो ये है सर्व शास्त्रादि पीयूषम। इसके बाद दिस श्लोक इज often quoted to explain why the Bhagavad Gita is treated as a complete spiritual भगवतम भी होगा। सर्व शास्त्रादि पीयूषम, डिस्टिल्ड नेचर ऑफ ऑल शास्त्र, सर्व वेदांत सारम, एसेंस ऑफ उपनिषदिक विजडम, सर्व सिद्धांत रत्नादम, containing all key and three philosophical conclusion। पद्म पुराण ये क्या है, कहाँ से आया? पद्म पुराण, गीता महात्म्य, verse clearing the Gita as the nectar and essence of all शास्त्र। और क्या है? सर्व वेदेषु सफला, सर्व शास्त्रेषु निश्चता, कृष्णोत्तम ब्रह्म विद्या या गीता सा विमुक्ता। तो ये क्या है? सर्व, सर्व है ऑल, वेदेषु इन द वेदर्स, सफला फ्रूटफुल सक्सेसफुल। तो ये है सर्व वेदेषु सफला, fruitful in all the Vedas, that who is fulfills the purpose of all the Vedas। मीनिंग क्या है? गीता में which is beautiful in all the Vedas, content all in all the shastras spoken by Krishna as Brahma and Gita, and Gita bestowers liberation। गीता ये भगवतम मिलकर है। सर्व शास्त्रादि पीयूषम, सर्व वेदांत सारम, सर्व सिद्धांत गीता शास्त्रामिदं अमृतम। तो ये है क्या? सर्व है ऑल, सिद्धांत एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स, रत्न है ज्वेल, आज्ञा which are filled abundant to reach with the jewels of all philosophical conclusions। सर्व लोकेक दिक् प्रद, सर्व लोकेक दिक् प्रद, सर्व is all, लोक words or wills or people, एक one single or supreme, दिक् direction, guidance or path, प्रद giver or bestower, सर्व लोकेक दिक् प्रद। इसको बोल सकते हैं the giver of one supreme direction to all worlds। The Gita sarva lokeka dik prada means it removes confusion among competing doctrines, it orients seekers towards a single highest goal, a moksha। It functions as a cosmic compass, not just a text। सर्व भावत प्राण, प्राण, सर्व भावत प्राण, सर्व is all, bhava, so bhavata in every sense, from every standpoint, in all aspects, prana life, vital force, animating principle, the very life force is every sense or more interactive, that which is the vital essence of all existence and all states of being। श्रीमद् भागवत प्रभु, श्रीमद् भागवत प्रभु, वर्ड बाय वर्ड में क्या? श्रीमद् ग्लोरियस auspicious divine भागवत, the blessed Lord, who one who possesses bhaga, bhaga means glory, bhaga glory, power, wisdom, renunciation। प्रभु, O Lord, O Master, O glorious blessed Lord, or more devotionally, O supreme and auspicious Lord। श्रीमद् भागवत प्रभु। कली ध्वंते आदित्य। तो कली क्या है? कलियुग, ध्वंत डार्कनेस,
Aditya, the sun in the darkness of Kali, in the smooth devotional English में क्या बोलेंगे? Like the sun shining in the dark age of Kali. Traditional sense क्या होगा? So this metaphor is used to describe something very often. The Bhagavad Gita or the Lord's teachings are dispelling ignorance in Kali Yuga, restoring clarity, dharma and direction, functioning like a sunlight where darkness dominates. Sri Krishna Parivartan. Sri Krishna, Lord Krishna, Parivartan, change or transformation in inner being. Transformation through Sri Krishna or more devotionally, the change of heart through above by Krishna, Sri Krishna. In Bhakti tradition, Parivartan is not just change but a turning of consciousness, movement from ego to surrender, from confusion to clarity, from bondage to liberation. So when someone says Sri Krishna Parivartana, they usually mean that which transforms life by bringing one under the grace of Sri Krishna. Paramananda Pathaya. Param means supreme or highest. Ananda, bliss. Pathway or way. Aya means towards, leading to. So leading to supreme bliss or the path that leads the highest bliss, devotional or philosophical sense. In Bhakti and Gita oriented tradition, Paramananda is not ordinary happiness. It means bliss that is steady, not emotional, joy rooted in realization, not circumstances, the bliss of union with divine. So Paramananda Pathaya is used to praise something upon the Bhagavad Gita or the grace of Krishna as the sure path that leads one to the highest permanent bliss. Prema Akarsat. Prema Varsam Akarsat. Sometimes also heard as Prema Varsa Akarsat. Same sense, compound style, word by word meaning. Prema, divine love. Varsa, rain or shower. Prema Varsa, shower of divine love. Akarsayat, drew the attached caused to descend. He drew forth a shower of divine love or devotionally. He caused love itself to rain down. Devotional sense क्या है? Bhakti language में. Alking prema bhakti in the heart, grace descending without efforts or qualification, love overflowing rather than being intellectually and. Do you know the power of hearing Srimad Bhagavatam? Even one sloka of Srimad Bhagavatam can purify us. If you can't read one sloka, read half sloka. If you can't read 1/4 sloka, if you can't read 1/8 sloka, here 1/8 sloka, that also will purify us. Bhagavatam itself says that. This sloka है श्लोकम एक तद अहम पदम पदार्थमेव वा श्रद्धावान यो सुश्रुता पुनात्यात्मानमेव स. तो क्या है? श्लोकम एकम, वन फुल वर्स. तद अधम भा और हाफ ऑफ इट. पदार्थम एव भा और ये पद और इवन हाफ ऑफ पद. सदावान एंडोर्ड विथ फेथ. यह अनुश्रूयत
who hears attentively and properly. So that person, Atmanam eva, his own self alam, unati, purifies. Meaning क्या है? A beautiful, a faithful person who attentively hears even one verse or half of a verse or a single pada or even half a pada purifies his very own self. By this very Bhagavad line, this perfectly reflects the purity of Srimad Bhagavatam. Bhakti is self-relieving, not merely corrective. Hearing, Shravan, works from within naturally. Even the smallest fragment of divine sound carries full potency. That's why quantity is never praised. श्रद्धा is. तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए. तो इसमें ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है भागवतम का. हम जब सुन रहे हैं एक जो फुल श्लोक हम सुनेंगे तो कितना अच्छा है. हाफ श्लोक भी अच्छा है, 1/4 भी अच्छा है, इवन 1/8 भी श्लोक को हम पढ़ेंगे और श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए. तो इतना ही. सर जी आए हैं, उनसे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. और एक डिस्कशन हम कर सकते हैं. हमारा जो एक दिन हम जो डिस्कशन किए थे तो उसके बारे में थोड़ा महत्व क्या है. अच्छा, ये जो है जो भूताकाश, जो परब्रह्म, भूताकाश क्या है, परब्रह्म क्या है, जो पूरा जो ज्योति, जो भगवान का ज्योति हर तरफ फैला हुआ है, जो फैला हुआ है महाकाश में, और इसका आदि अंत तो नहीं है. ये जो जितना जगह परब्रह्म है, जो सूर्य के आलोक जैसे पहुंचता है, जैसे भगवान का जो दिव्य ज्योति पहुंचता है, ये परब्रह्म को बोलते हैं. तो परब्रह्म में माया का बादल 1/4 भाग में माया का बादल सृष्टि होगा. ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान का अंश है जीव. जब जीव का मन में भोग लालसा भोगने के लिए कुछ इच्छा हो, जागृत हुआ, भगवान उनको समझाया. तो आप क्यों ऐसे अलग होना चाहते हैं? वो जीव जिद लगा कर क्या कि नहीं नहीं मैं अलग रहूंगा. जैसे पिता तो पुत्र का संपर्क है, पुत्र बोलेगा कि मैं एक फ्लैट करूंगा, उसमें रहूंगा. पिता बोलेंगे कि क्यों आप मेरे से अलग होना चाहते हैं. तो वो पुत्र जिद करता है, नहीं नहीं मैं अलग रहूंगा, मेरा इच्छा जो करूंगा, मेरा आजादी चाहिए. तो उसके बाद क्या करते हैं पिताजी? बाध्य होकर उनको परमिशन देगा, पैसा देते हैं. कुछ घर करेगा, उसका घर में क्या चीज लगेगा, जैसे घर होगा, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटरिफिकेशन, ये सब पिताजी जैसे सब तदारक करके उसको रखते हैं, बेटे को देते हैं, उसके लिए काम करते हैं. हाँ, क्योंकि पुत्र का चिंता होता है पिता. तो इसके बाद क्या होता है, जैसे भगवान उसको भूताकाश में, तो माया का जो ये होता है भौतिक जगत में, उसको भेजेंगे.
मगर उसका चिंता भी होता है। जैसे बेटा को दूर होने के बाद पिता क्या सोचता है, क्या मेरा बेटा कैसे रहता है, थोड़ा मैं घूम कर आऊं। तो बीच बीच में क्या करते हैं, बेटा को घर को जाते हैं, वो कैसा क्या कर रहा है देखते हैं, उसको परामर्श भी देता है। जब ये पुत्र सुनता है उनका बात तो ठीक है, अच्छा ही सोचते हैं, परामर्श देते हैं, और पुत्र वो सुनेगा नहीं सुनेगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो क्या है, तो भौतिक जगत एक सृष्टि करते हैं, तो जो पूरा महाकाश का 1/4 भाग में माया का एक बादल आता है। जो माया का बादल, जैसे बादल पृथ्वी में बादल क्या होता है, सूर्य किरण को वो बीच में रुका देते हैं, तो छाया उत्पन्न होता है। बादल रहेगा आकाश में तो सूर्य लोग नहीं पहुंचेगा किधर, वो छाया हो जाएगा। तो ऐसे माया का बादल जब आ जाता है तो ये जो ब्रह्म ज्योति है भेद कर नहीं जाता है। माया ही भगवान का एक आंतरिक शक्ति है ना, तो शक्ति है भगवान का एक शक्ति है। तो क्या है, तो जानबूझकर उसको भगवान की इच्छा से सब होता है, उनको इन पर किया जाता है। माया का इतना शक्ति नहीं है कि भगवान को प्रोटेक्ट कर सके, अवरोध कर सके। तो भगवान चाहते हैं जाने के लिए, ये जो भेजने के लिए जो इंद्र को जो मिलेगा उसको, और इसलिए जो भूताकाश इसको बोलते हैं, जिस इधर माया का बादल रहता है, वो परबम, जो परबम होता है ब्लैंक स्काई, उसमें एक काला बिंदु जैसे छोटा डॉट, छोटा डॉट होता है। देखिए कितना छोटा साइज का है। हम जो रहते हैं ये भूताकाश बोलते हैं, इसमें कितना गैलेक्सी है, तो हम कुछ ही जानते हैं, साइंटिस्ट में कुछ जानते हैं, मिल्की वे है, उसके पास हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारा पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बड़ा है, ये सबसे छोटा है। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी सब बहुत छोटा है, इससे बड़ा बड़ा गैलेक्सी है, हम नहीं जान पाए। ये जो इतने गैलेक्सी है इधर, ये सब ये जो महत्तत्व इसको बोलते हैं काला बिंदु, ये भूताकाश में रहते हैं। अब सोचिए ये 1/4 भाग है, इसको हम नहीं जान पाए, तो पूरा जानने की कैसे। तो भगवान का ऐसे विशाल है, सृष्टि है। तो ये काला डॉट 1/4 का, तो ये जो बादल के, जो माया का बादल, इसलिए ब्रह्म ज्योति नहीं पहुंच पाता है। ये है क्या, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में ये जो भगवान छोड़ दिए, मगर ये पिताजी है, वो ये क्या बेटा कैसे चल रहा है, जीव कैसे चलेगा, क्या करता है, इसीलिए क्या उनका मेरे से जड़ित हुआ था, तो वहां तो नहीं छोड़ते ना किसी को, उनके साथ जो जड़ित होता है उनके बारे में सोचते हैं, वो मेरा बच्चा कैसे है। इसीलिए भौतिक जगत में क्या हो रहा है, ये जो महत्त्व को विष्णु, जो कारणदायी विष्णु के रूप में आते हैं, उनका जैसे हम परिश्रम करते हैं, हमारा ध्यान निकलता है, स्वर्ग निकलता है, तो उनका ध्यान निकल कर ये जो महाशून्य है, कुछ शून्य है, उसमें शून्य से कुछ जगह बनाने के लिए इनका झाल जो निकलता है इतना, तो कारण जल उसको बोलते हैं, दिव्य झाल है, ये दिव्य झाल। तो कारण जल होता है, तो कारण जल में कारण दाई विष्णु, कारण सकदाई विष्णु, कारण सकदाई विष्णु माने साहित्य विष्णु, तो साई कारण दत्त साई विष्णु, साहित माने सायन ये है। तो कारण जल में जो सायन शयन करते हुए उनके क्या होता है, जो कारण काजुअलोशन है उनका, वो कारण माने इसे इच्छा करते हैं, तो उनका क्या होता है, जो रोम फूक से
कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलता है। जब जो श्वास छोड़ते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड उनका लोमकूप से निकल जाता है, तो ये सृष्टि होता है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलता है, और जब श्वास भीतर लेते हैं तो जो ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड निकला था वो इसको उनके भीतर फिर से घुस जाता है, पूरा ध्वंस हो जाता है। तो आप सोचिए उनका निश्वास प्रश्वास लेने के लिए कितना वक्त होता है भगवान, किंतु कोटि कोटि करोड़ करोड़ साल चला जाता है। तो उनका विश्वास जो निश्वास लेने से देने से क्या होता है, देखिए बहुत बहुत बड़ा बात है इसमें होता है। अच्छा, जो ब्रह्मांड का जो कारण जल में वो सहन करते हैं, तो फ्लोटिंग होकर सहन करते हैं, तो उनका ऐसे निकलता है जो ब्रह्मांड जो निकलता है, और ब्रह्मांड का भीतर एक गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं। वो समान है, कुछ नहीं, उनका शक्ति है सब। तो जो महाविष्णु है वो महाविष्णु भी कहे जाते हैं। कौन ना कारण दकशाही विष्णु महाविष्णु भी बोले जाते हैं। तो महाविष्णु जो लोमकूप से जो निकलते हैं ब्रह्मांड, तो और इस ब्रह्मांड में उनको इसको बचते हैं, और ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु को भेजते हैं, वो भी उनका अंश है, कृष्ण का अंश है। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो आते हैं, विष्णु के ब्रह्मांड जो निकलता है लोमकूप से, इस ब्रह्मांड में वो भेजते हैं किसको ना, गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु और ब्रह्मांड में होते हैं, और ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। तो ब्रह्मांड गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं, उनका नाभि कमल से, एक नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, उनसे ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी के शिव जी आते हैं, और जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो खुद आते हैं विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, हम बोलेंगे क्षीरोदकशाही विष्णु, हम जानते हैं जैसे क्षीरोदकशाही विष्णु और जीव के हृदय में रहते हैं, और कौन परमाणु में जो है उनके उसमें भी रहते हैं। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु भी रहते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु भी रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर इतना डिफरेंस नहीं। तो हम डिस्कशन किए थे, सर को पूछे थे, जो इधर लिखा है कि गर्भोदकशाही विष्णु हर जीव में भीतर रहते हैं, और एक पारा में लिखे थे भगवान ने ये क्षीरोदकशाही विष्णु भी हर जीव के भीतर रहते हैं। तो सर जी क्लियर किए थे कि गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु कुछ अलग नहीं है, यही तो सब भगवान का अंश है, भगवान से आ रहे हैं, एक्सटेंशन है। तो ये जो है ये सब ब्रह्मांड में क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं, जो क्षीरोदकशाही विष्णु पूरा हर जीव का हृदय में वास करते हैं, परमात्मा रूप में रहते हैं। अच्छा, भगवान का ये सब शक्ति ही कुछ है, ये कुछ शक्ति भगवान का जो है शक्ति, ये जीव शक्ति की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये सब है। तो जो अंतरंगा शक्ति कौन है ना, जोगमाया, और बहिरंगा शक्ति कौन है, महामाया। तो महामाया कौन है, दुर्गा देवी। हम जानते हैं दुर्गा पूजा जो होता है, कि दुर्गा देवी ही बहिरंगा शक्ति उनका है। तो दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति है, जोगमाया है अंतरंगा शक्ति। डिफरेंस क्या है जोगमाया और महामाया में? महामाया माया का ये जेलर, जो जेल है, हम आए हैं तो जीव को दंड देते हैं। जो बद्ध जीव होते हैं तरह, जो हमारा भौतिक जगत में जीव को उनका कर्म अनुसार जो दंड देते हैं, बद्ध जीव को जेलर होते हैं, वो महामाया है।
दुर्गा देवी है। तो जोगमाया कौन कौन है ना, भगवान का लीला में सहयोग करते हैं तो जोगमाया। एग्जाम्पल हो सकता है जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। सुभद्रा कौन है? ये जोगमाया, अंतरांगा शक्ति है। और राधा राधा जी भी अंतरांगा शक्ति है भगवान का। वो भगवान का लीला में सहयोग करते हैं, भक्तों को सहयोग करते हैं भगवान के साथ। हाँ, प्रेममयी सेवा में जुड़ने के लिए साहाଯ୍य करते हैं। और महामाया क्या करते हैं? दूर लेने के लिए चेष्टा करते हैं और उनका दंड देते हैं जीव को। हाँ, तो माया क्या है? मांग या, मांग माने नहीं, नहीं, या माने जहाँ कुछ, जो कुछ, जहाँ अस्तित्व नहीं है जिसका, वो माया है। माया का अस्तित्व कुछ सेंसेशन नहीं है, माया। तो बहिरंगा शक्ति माया शक्ति, अंतरंगा है जोगमाया। तो और है कि जीव शक्ति। हम वी आर ह्यूमन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो उनका कुछ अंश हम भी एक शक्ति है लिमिटेड क्वांटिटी में। तो उनका तो अनलिमिटेड क्वांटिटी है, 6 पॉपुलेशन से, और हमारा कुछ कुछ है वेरी वेरी लिमिटेड। अच्छा, जो भगवान का जो जुगमाए होते हैं तो दो प्रकार इधर है। एक है जीव शक्ति और तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं जीव शक्ति को। तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पावर, इंटरनल पावर, एक्सटर्नल पावर, मार्जिनल पावर। तो मार्जिनल पावर है जीव शक्ति और इंटरनल है जोगमाया। तो जीव शक्ति जोगमाया जो होते हैं, जोगमाया को विद्या भी बोलते हैं, विद्या, और महामाया को अविद्या। इसको अविद्या भी आता है माया से। तो अविद्या क्या है? जो स्कूल कॉलेज में जो विद्या लेते हैं वो अविद्या है, जो भगवान के बारे में नहीं होता है वो अविद्या है। अच्छा, भगवान का दो डिवाइड में है, काल शक्ति और महामाया शक्ति। ये भी है एक ब्रांच। काल शक्ति कौन है? शिव है। महामाया शक्ति क्या है? कौन है? न दुर्गा देवी है। हाँ, तो काल शक्ति का क्या इधर है, काल शक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति, अच्छा, भगवान विष्णु जब जो काल शक्ति को एक ग्लांस करते हैं, प्रकृति को, विष्णु जब काल जो प्रकृति को ग्लांस करते करते उसको गर्भवती करते हैं, वो जो प्रकृति सृष्टि होता है। हाँ, ये जो उनका जो दृष्टि होता है, ये ग्लांस है, ये है शिव, ये काल शक्ति। जो महामाया शक्ति जो दुर्गा देवी है, उनका दो पार्ट होता है। एक पार्ट है प्रधान और दूसरा है अविद्या। अविद्या के बारे में बोले हैं अभी, जो स्कूल कॉलेज में हमारा पढ़ा जाता है वो विद्या है। और प्रधान क्या है ना? निष्क्रिय प्रकृति। जो प्रकृति है मगर ये निष्क्रिय है, जी कुछ सृष्टि नहीं हुआ है, माने न्यूट्रल में रह रहा है अभी प्रधान। निष्क्रिय प्रकृति, प्रकृति अभी पूरा न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है। ये जब काल के संपर्क में आता है, ये महत्त्व होता है। महत्त्व बहुत चेष्टा करेंगे इसको, महत्त्व का एक क्लास हो जाएगी। तो निष्क्रिय प्रकृति जब काल के संपर्क में आता है तो महत्त्व होता है। महत्त्व ये सब जो होता है, जो हमारा 24 प्रकार का जो हम जानते हैं जो गुण होता है, ये सब बारे में अब आएंगे बाद में। अच्छा, महत्त्व जब काल के संपर्क में आता है फिर से, तो अहंकार बन जाता है। अच्छा, ये जो अहंकार है, ये देखिए जो एक्सपेंशन है कृष्ण, इसके बाद और अभी जो संकर्षण, नारायण संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब आते हैं। जो फर्स्ट एक्सपेंशन, सेकेंड एक्सपेंशन में जो संकर्षण होते हैं वो अहंकार का फॉल्स, ये जो फॉल्स अहंकार, ईगो, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं संकर्षण। सेकेंड एक्सपेंशन में जो अहंकार होता है
अहंकार जब तम सत्व गुण में अहंकार हो सकता है, तम गुण में अहंकार हो सकता है, रज गुण भी हो सकता है। जब सत्व गुण में अहंकार होता है तो मन आता है। मन ये सब जो महत्व जो छोड़कर उसका जो 24 प्रकार एलिमेंट है प्रकृति का, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। जो अहंकार होता है ये भी एक एलिमेंट है। अहंकार जब सत्व गुण में आएगा और एक एलिमेंट निकलेगा, वो है मन। तो ध्यान लगेगा तो वो मन है, माइंड। उसके बाद तम गुण जो आएगा अहंकार के संस्पर्श में, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो 5 एलिमेंट निकलेगा। तम गुण में 5 निकलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो 5 एलिमेंट इधर आ गया। सत्व गुण में आएगा तो मन निकलेगा, ये 6 हो गया। रजगुण में क्या होता है? रजगुण अहंकार रजगुण में 3 टाइप का होता है। एक कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि। बुद्धि का साथ जो विकार होता है तो इसमें 5 आता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत। पंचभूत होता है। तो ऐसे एलिमेंट सब आता है धीरे धीरे। एलिमेंट सब महाभूत जो हमारा निष्क्रिय प्रकृति के संपर्क, जो काल संपर्क में एक निष्क्रिय प्रकृति आएगा, महतत्व आएगा। महतत्व के बाद ही जीव जो प्रकृति खिलखिला होता है वो उठेगा। वो उसके बाद इसको एलिमेंट 24 एलिमेंट्स आ जाएगा इसके भीतर। हाँ, बिना जो सत्य गुण, तम गुण, रजगुण, अहंकार, ये सब मिलकर प्रकृति के साथ ये सब एलिमेंट सब तैयार हो जाएगा। इसके बाद सब नेचर का इफेक्ट में आकर जीव सब चलता है। अच्छा, ये जो कृष्ण जो है वो जब अग्नि के साथ उनको कंपेयर किया जाएगा, ये आदिमूल स्वरूप होते हैं कृष्ण जी, श्री कृष्ण आदिमूल स्वरूप। ये अग्नि के साथ कंपेयर किया जाएगा तो उसके साथ छोटा छोटा फ्लेम निकलता है। ये है क्या ना, सो अंश इसको बोलते हैं। सो अंश अवतार, जो अवतार आते हैं भूत जगत में, तो ये 100 अंश है अवतार। उनका भी पावर होता है। छोटा जो कौन होता है उसमें पावर होता है, और बहुत छोटा छोटा डॉट आता है उसके ऊपर, तो वो है जीवात्मा। बहुत छोटा छोटा डॉट है वो जीवात्मा। भिन्न अंश है, भिन्न अंश। 100 अंश है अवतार, भिन्न अंश और छोटा, बहुत छोटा है वो जीवात्मा। और धुआं निकलता है उसके ऊपर, धुआं निकलता है वो है माया। तो अहंकार का शुद्ध रूप है संकर्षण, प्योर ईगो। फॉल्स ईगो होता है, ये प्योर ईगो। प्योर ईगो का जो अहंकार का शुद्ध रूप है संकर्षण, ये प्योर ईगो है। प्योर ईगो के साथ जब सब सत्व गुण, तम गुण, रज गुण सब मिलता है, इसके बाद क्या आता है? मन आता है। पंचन तो सात्विक अहंकार ये है, मन है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है सात्विक अहंकार। इसके सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार सात्विक में आएगा तो मन आएगा, पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय आएगा। महतत्व में ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय होता है, पंच कर्मेंद्रिय होता है, और तन मात्रा एक होता है, पंच तन मात्रा, और पंचभूत होता है। तो तामसिक जो अहंकार आता है, तन मात्रा विषय, विषय के विषय जो होता है तन मात्रा है। 5 भूत होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पंचभूत तो हमारा जो बॉडी होता है ना, भौतिक परिवेश पंचभूत में होता है सब। तो महतत्व जो है, ऐसे
बीज रोपण होता है, जो गर्भोदय के विष्णु जब गर्भोदय के विष्णु जो आते हैं अंडे रूप में, गोलाकार अंडे के रूप में आते हैं विश्व को, उनका झाल जो आध्यात्मिक झाल है इसमें विश्व भर जाता है और परतत्व में बीज रोपण होता है। तो बीज रोपण से क्या होता है, जीव सृष्टि होता है। पराशक्ति अपराशक्ति ये दोनों मिलकर तटस्थ शक्ति, जो मार्जिनल पावर, इसको सृष्टि करते हैं। तो महत्त्व में क्या होता है, भौतिक सृष्टि का समस्त उपादान रहता है। महत्त्व में सृष्टि का जो उपादान, जैसे जीवन सृष्टि होगा वो महत्त्व में, महत्त्व को प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति नहीं है किंतु प्रकृति भी बोल सकते हैं। और महत्त्व में भौतिक सृष्टि का समस्त उपादान रहता है। जैसे महत्त्व को समझ लीजिए, उर्वर मिट्टी है, इसमें जीव आता है कि बीज रोपण जो करते हैं भगवान, तो महत्त्व में बीज रोपण होता है। जो आत्मा आए भेजते हैं महत्त्व में, उसके बाद जो सृष्टि होता है जीव का। तो महत्त्व तो सबूत आता है। तो महातत्व को इससे समझ सकते हैं। जो और एक बात इम्पोर्टेंट है, प्रकृति से जीव प्रकट नहीं होता। जीव महत्त्व में भगवान जो देते हैं बीज, इसमें प्रकट होता है, प्रकृति से प्रकट नहीं होता। महत्त्व में जो बीज देते हैं कौन, भगवान, उससे प्रकट होता है। हम बोलते हैं कि प्रकृति से हम आए हैं, प्रकृति से आए हैं, नहीं। हम जो प्रकृति महत्त्व में जो बीज रोपण करते हैं भगवान, उससे आए हैं। तो जो पशु व मनुष्य, ये कैसे होता है, हम मनुष्य है, कोई जो वृक्ष है, कोई पशु है, ये कहाँ से आए हैं, ये पूर्व जन्म से कर्मफल से ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी शरीर प्रदान करते हैं, इसको याद कर रखना है। ब्रह्मा जी सृष्टि, हम बोलते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि करते हैं, नहीं। ब्रह्मा जी इंजीनियर, याद कीजिए, सर जी बोल रहे थे, ब्रह्मा जी आग चला के इंजीनियर, नॉट गॉड। ये क्या है, ब्रह्मा जी मैंने सृष्टि नहीं करते, शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी जीव को उसका कर्म फल से अनुसार शरीर प्रदान करते हैं। शिल्पीकार हैं, शिल्पीकार, नॉट क्रिएटर। तो किसको किस बॉडी मिलेगा, वो सब ब्रह्मा जी तैयार करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं उसको। ये ऐसा रूप मिलेगा, उसको मनुष्य रूप मिलेगा, इसको वृक्ष मिलेगा, ये कुत्ता होगा, ये गधा होगा, ये सब ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते। तो जो पूर्व कर्म फल जो है होता है, उससे मनुष्य होगा, तो पशु होगा, तो वृक्ष होगा, वो सब ये करते हैं ब्रह्मा जी, शिल्पीकार है। तो प्रकृति से जीव प्रकट नहीं होता है, इसको भी याद रखना है। तो जो ब्रह्मांड का अव्यक्त रूप प्रधान है, ब्रह्मांड का प्रधान जो बोले थे, वो प्रधान है ब्रह्मांड का जीव रूप का अव्यक्त अवस्था। हाँ, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, ये क्या है। उधर जो प्रकृति का त्रिगुण बैलेंस कंडीशन में रहता है, बैलेंस कंडीशन जो त्रिगुण में होता है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब बैलेंस रूप में रहता है। तो हम जान नहीं पाएंगे क्या है, डिफरेंस कुछ होगा तो जानेंगे। तो इस अवस्था जो होता है प्रकृति का बैलेंस अवस्था, इसको प्रधान बोला जाता है। जब प्रधान में महाविष्णु और कारण दक्षसाई विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं,
तो दृष्टि के माध्यम से जीव का प्रवेश होता है। केवल जीव नहीं, उसमें काल भी प्रवेश करता है। तो शिव जी का भी हाथ है इसमें। तो जो काल होता है, शिव जी है काल। तो प्रधान में क्या होता है, जो जीव का रूप बीज रूप, जो ब्रह्मांड का बीज रूप, ये अव्यक्त रहता है, सम्य अवस्था में रहता है। इस प्रधान में जब भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि के माध्यम में जीव का प्रवेश होता है, तो आत्मा आता है। केवल जीव नहीं, इसमें काल भी प्रवेश करता है। जीव का जो पुराना कर्म है और स्वभाव है, इसमें प्रवेश करता है। देखिए, एक आदमी मर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है, धन संपत्ति कुछ नहीं जाता। ये जो कर्म जो करता है, अच्छा बुराई कर्म, वो कर्म जाता है उसके साथ, और जगत पर जगत में इसका नेचर जाता है, स्वभाव। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सर जी बोले हैं पहले। तो जीव जब मर जाता है, उसका जो पुराना कर्म है, स्वभाव है, जिसका जैसा स्वभाव है, ये जाता है। तो जब प्रधान में जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, माँ विष्णु दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि के माध्यम में जीव का प्रवेश होता है। उसके जीव के साथ भी काल का प्रवेश होता है। तो जो जीव का पुराना कर्म है और स्वभाव है, इसमें प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन होता है, क्रिया होता है, आरंभ रिएक्शन। तो रिएक्शन होता है, इसमें क्या है, जो रिएक्शन के बाद प्रधान, काल, कर्म, स्वभाव। प्रधान जो बीज रूप, जो माने नॉर्मल सम्य अवस्था में रहता है, प्रधान इसको बोलेंगे। तो उसके बाद काल प्लस कर्म प्लस स्वभाव, ये महत्त्व होता है। ये इम्पोर्टेंट है महत्त्व। अब कितने बार सुने होंगे, ये थोड़ा मैंने बहुत इसको बारे में पढ़ा, इसके लिए मैं चेष्टा कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो महत्त्व क्या होता है, इससे बोल सकते हैं। देखिए, काल भी, जो हम प्रकृति भी कह सकते हैं, मैं बोला, क्योंकि ये पूरा ठीक नहीं है। तो महत्त्व होता है, प्रधान है प्लस काल है प्लस कर्म है प्लस स्वभाव है। तो महत्त्व को जैसे बोल सकते हैं, एक उर्वर जमीन है, फील्ड है, इसमें बीज रोपण होता है, मतलब बेसमेंट है प्रधान। तो प्रधान में काल, कर्म, स्वभाव, ये महत्त्व होता है। प्रधान प्लस सत्वगुणी बुद्धि, बौद्धिक क्या होता है, प्रधान में सत्वगुण बुद्धि जब मिल जाता है, बौद्धिक और ज्ञान शक्ति होता है। प्रधान में रजगुण मिलता है, सत्वगुण और क्रिया शक्ति। प्रधान में तामसिक गुण मिल जाएगा, तो अहंकार। प्रधान में तामसिक गुण मिलेगा, अहंकार। ये फॉल्स ईगो है, ये जो अहंकार है, ये फॉल्स ईगो। और भौतिक जगत अहंकार से सृष्टि हुआ है। तो भौतिक जगत क्या है, अहंकार, मैं, मेरा, ये सब जो मैं, मेरा, ये जो अहंकार है, ये फॉल्स ईगो है। इसमें भौतिक जगत सृष्टि हुआ है। तो माली माटी में बीज रोपण करता है, तो माटी कौन है, प्रधान है। जैसे बोला था, माटी है प्रधान, बीज देने वाला व्यक्ति कौन है, भगवान। बीज कौन है, आत्मा। तो माटी में बीज देते हैं भगवान, वो बीज होता है आत्मा, आत्मा को बेचते हैं। तो महत्त्व होता है प्रधान, काल, कर्म, स्वभाव, ये सब मिलकर महत्त्व होता है। तो इसको ऐसे समझाने के लिए, माटी में बीज रोपण होता है, माली कौन है, भगवान, बीज देते हैं। और माटी कौन है, प्रधान, बीज क्या है, आत्मा। आत्मा जब प्रकृति में गर्भस्थ किया जाता है, तो
वैचारिक सात्विक अहंकार तो मिल जाता है, उसमें मन का सृष्टि होता है। देखिए, ये बहुत भीतर का बात है, वो जितना समझ सका इसको मैं लिख कर भी रखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा भी मन नहीं रहता, मन में पूरा नहीं रहता है। तो वैचारिक जो वैचारिक बुद्धि, वैचारिक और सात्विक अहंकार, जो सात्विक अहंकार में मिलेगा मन का सृष्टि है, तो माइंड। तो राजसिक अहंकार में, राजसिक अहंकार होगा तो तेजस, बुद्धि और 10 इंद्रिय का सृष्टि होता है, प्राण का सृष्टि होता है। तामसिक अहंकार होता है क्या? ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ध्वनि से आकाश रिलेटेड है, वायु से अग्नि रिलेटेड है, जल से पृथ्वी रिलेटेड है। ये सब। और तन मात्रा एक बोला था, आपका मन में भी आता होगा, तन मात्रा कौन है? तन मात्रा 5 तन मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। हाँ, अब 5 महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, ये 5 महाभूत और 5 तन मात्रा, ये मिलता है। ये भी एक रिएक्शन होता है। आकाश में शब्द, आकाश में शब्द, साउंड भी जलता है, सब आकाश में। वायु स्पर्श, वायु वही जो जाता है बहता है, इसमें भी स्पर्श आता है हमको। अग्नि रूप आता है। जल स्वाद, जो रस आता है जल से। पृथ्वी गंध आता है, वर्षा जो होता है पृथ्वी गीला हो जाता है, इसमें गंध आता है। तो ये तन मात्रा क्या है? 5 महाभूत और शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध में मिलकर 5 तन मात्रा होता है। 10 इंद्रिय होता है, 5 कर्म इंद्रिय होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, ज्ञानेंद्रिय। तो 20 मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 3 हो गया। 10 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मिलकर 20। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 मिलकर 23। महत्व मिल जाएगा 24। ये 24 तत्व में चेतना नहीं था, नहीं है। ये 24 तत्व में चेतना नहीं था, किंतु जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है, आत्मा जो पुराना, ये जो आत्मा है, देखिए ये जो 24 तत्व जो होता है क्या है? 10 इंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान, 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 20 मन, बुद्धि, अहंकार 23 प्लस महतत्व 24। 24 तत्व होता है, इसमें चेतना नहीं रहता है। किंतु जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है, जो आत्मा का पुराना जो जीवन था, उसका कर्म और स्वभाव था, वो आत्मा पे घुसता है। तब ये जो तत्व 24 तत्व में घुसता है, जो आत्मा का जमा पूंजी आधार से उसका नया शरीर दिया जाता है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा, जो आत्मा के साथ किया जाता है, इसमें कर्म और स्वभाव जाता है आत्मा के साथ। तो इसका आधार में नया शरीर दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं, हम जो कुछ पा रहे हैं और दूसरे भी जो पा रहे हैं, ये सब पुराना जीवन का कर्म और स्वभाव, इसीलिए जमा पूंजी से हमको ये शरीर मिला है। तो ये तो जानते हैं। तो आज तो टाइम हो गया, ये तो बहुत बड़ा देखिए चेष्टा कर रहा हूँ। तो कुछ इसमें भीतर कुछ छूट गया है, कुछ उसके भीतर कुछ संदेह है, थोड़ा पूछ सकते हैं। तो प्रधान क्या है, तो फिर से बोल सकते हैं। महत्व क्या है, कुछ संदेह है तो बोलिए, नहीं तो क्लास खत्म है। हरे कृष्ण। किसान प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। क्या प्रभु?
हाँ सुशांत भाई बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ आप कुछ याद रहा रहिला ना नहीं कुछ। ହଁ ନା ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ସବୁ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ हाँ କହିଲେ। ଏଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଏତେ। हाँ ହଁ ମାନେ ସହଜ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ନୁହେଁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଥରେ କେମିତି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗବତମ ଲେଖିକି ପଢ଼ିବାର ରଖିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କହନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭାଗବତମ କାହିଁ ଜଣେ ପଢ଼ିବ ଆପଣ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଧା ମାନେ ଏମିତି 1/4 ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରିବ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଏନେସ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କେଉଁଟାର କେମିତି ପାୱାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପାୱାର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ଏଇସବୁ କେମିତି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ରେସିପ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ମହତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାଳ କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର ବାର ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ମନେ ରହିବ ମାନେ ମନେ ତ ରହୁନି ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲିକି ବସେଇ ବସେଇ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ସାର୍ ବି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ କି କ'ଣ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର ଇଡି ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି କଥାବାଚକ ନ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇକି ତାପରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହ ବି ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହବ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆମକୁ ତ ଆଗେଇ ପାରିବାନି ଆମର ଯଦି ବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଚିତ୍ତପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु समस्त को दंडवत प्रणाम। ये वरिष्ठ वरिष्ठ किछि नाही भाई आमे भक्तगण रे भी बणा ही परिबा नाही हला तादर 10-12 पदरणु मोर पंचग्रास। हाँ से कथा से मानकर पदरणु जदि आम पाखे आमे ताकू पाई परिबा तांकर जदि किछि हेबो ताने सेटा ही हमर हेबो। हाँ ସେମାନଙ୍କର ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ସେମାନଙ୍କର କଥା ହରିହରାୟ ନମ ଭଗ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି ନା ଭାରି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କରୁଣା ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ସେମାନଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବା କେମିତି ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଶଶରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ महाराज मानकर विशेष करुणा विशेष कृपा न हेले ही परने इट इज एक्चुअली अहैतुकी कृपा जाग हेतु माने कारण अहैतुकी कृपा तो कोन बिना माने बिना कारण रे जो कृपा मिलिबो सेही भया कथा नो नो एक्सपेक्टेशंस नो ये सेही भया भाव रे यदि जो कृपा मिलिबो से कृपा पाई तो पुनी सेही कथा ही कहउचंती हमको कहाई जी निर्देश आमे किसी गाइड करियार हमर कोन योग्यता नहीं गाइड करिया लोक करूचंती प्रभु बर्तन अच्छे आम से ही प्रकृत ठीक ठीक गाइड कर गाइडेंस ठीक अच्छी फुल प्रूफ गाइडेंस अच्छी एक्चुअली ही इज वेरी मच वरीड अबाउट ऑल ऑफ अस से आम समस्त बहुत व्यस्त अच्छा बहुत चिंतार अच्छा आम कहीं भाई कैन नॉट वी प्रोसीड आम कहीं से रास्ते एत आगे पारे कहीं आम ज्ञान एत संक्षिप्त सीमित हो जाए कहीं आहरी एक्सपांशन हवा दरकार तो एक्सपांशन हाँपाई
से ज्ञान मोड़े एज ए टीचर मोर आम गोटे पिला मुझे किसी समय फॉलो कर हाई स्कूल पढ़ुली कॉलेज रे पढ़ुले तो मुझे विशेष हाई स्कूल कॉलेज रे प्रॉब्लम है माने कॉलेज रे बदमाशी तो बाहर जानी हुए फाका पाइगले फ्रीडम पाइगले बापा माँ फ्रीडम पाइगला तो बदमाशी हुए तथापि भी परवर्ती काल रे पुणी मझे पुणी थे मुझे फॉलो करी मुझे पढ़ुली आमको सार कही मोर जड़े सार थे से संपर्क मोर अजा कहती से पंकज प्रभु भी संपर्क आसुच्च ये होती जे जड़े आम जो पीशाशुर झी माने आम शाली तार ये को से विवाह माने से मो सार पुतरा जड़े विवाह से मो सांग था तो सही कथा मुझे कहूँ से से सार मत कही मत बेले बेले थट्टा करी कहते माने क्लास बेले बेले कहता क्लास भी कहता अन्य समय कहते जे मो डाकनाटा अच्छी अक्षय किंतु डाकनाटा गोटे अच्छी न खिया अखिया मत से कथा कहता अखिया तो कौन करुचु से ये से कही भल कथा जे तू जहाँ पढ़ुचु बही देखलु पढ़िलु बहीटा बुझीदेबु कौन पढ़िलु मन पकेबु है कि लाइन वाइज लाइन वाइज प्रथम धार कौन लिखा है द्वितीय धार कौन लिखा तृतीय धार कौन लिखा कंसंट्रेट करू कौन कौन लिखा है जिते पर्यटन जितका मन पड़ा पुणी बंद कर पुणी थे देखू बही खोलू देखू पुणी थे ये कर एमती करके मन कर कि मुझे अभ्यास टा चलाऊली आगुरी करूली आगुरी एबे टिके करि पार नाही कंसंट्रेट तो हे पार नाही काना सेतबेला जुग अलगा था समय अलगा था वर्तमान समय अलगा हेलानी तो आमे बहुत आवरी केओटिक सिचुएशन हे गेलानी जंजालमय आ तथा माने कोलाहलमय जीवन हे गेलानी तेणु से ता भितर कंसंट्रेशन रखा कष्ट सतरे मु जानि पाछु बुझी पाछु जे कली जुग रे कोलाहलमय जीवन भितर आपण को जो ध्यान फ्यान जो कथा कहउजती से ध्यान करबा भारी कष्ट सेइतमे सबुठु माने बढ़िया जो ये होची भक्ति जुग हला तेणु एटा बहुत माने फुल प्रूफ बहुत बढ़िया जिनस ता भितर सब किछि हे पारे भक्ति कले सब हे पारिबो तो सेटा मु भी अनुभव करछि आस्ते आस्ते धीरे धीरे अनुभव करछि जे भक्ति जे ठीक भार करि पाछि जे तार किछि असुविधा नाही हमको गाइडेंस ठीक ठीक मिली गुरुदेव अच्छी वरिष्ठ भक्त अच्छा प्रकृत जो वरिष्ठ भक्त खाली बयस दृष्टिकोण नुहे जो प्रकृत ज्ञान अच्छी जो प्रकृत भागवत अन्य शास्त्र को माने बुझी 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 पारचंती बुझी अधिक अधिक माने प्रैक्टिकल करने अधिक अधिक आम बोधगम्य हवाई आमको आहरी अधिक अधिक प्रचेषा कर लोक गाइडेंस पाचु तेणु आमर हवा कथा उन्नति हवा कथा किंतु आमे जेहेतु कार्यकारी करूना तो ये आम उन्नति हो पाने से बड़ कथा होची आमर एप्लिकेशन टा बहुत कम होची एप्लिकेशन इज 1 आउ येटा होची 99 सेति आम हो पाने एप्लिकेशन जते बड़ी बड़ी चलिबो सेते आमर आस्ते आस्ते बड़ी ये बढ़िबो आमर ज्ञान रे माने भक्ति रे अग्रगति हो नले हो हम एप्लिकेशन अप्लाई कम करछे हबो कोठो हम अप्लाइड नॉलेज हम पकर नै तो सेटा कथा तेणु से आमको एप्लाई बेसी करिया बेसी बेसी एप्लाई करिया पड़े ताले कि हमर जीवन ये हबो तो से कथा आ जो कथा आज जो सृष्टि विषय जो कहले अबाउट क्रिएशन ये क्रिएशन विषय जो हमर चित्त प्रभु जो कथा कहले माने जो वर्णना करथले तो मु टिके ताको निवेदन करबी से ताको टिके माने आइदर गोटे जो फ्लो चार्ट भलिया करे कि बा आउ टिके कैप्सूल टाइप करे कि आउ टिके माने संक्षिप्त किंतु माने ये से माने करी जदी किछ करि पारे हले टिके टेस्ट माने चेष्टा करते माने पंकज प्रभुंकर सजेशन नै कि तुम कहूची काहे कि ना नले माने गलत इन्फॉर्मेशन पळे आसीबो आ सेटा को से हमर ए जो ग्रुप रे जदी शेयर करि पारंते बा जदी से जो ये किछ किछ जानु चंद आज जोटा इंपोर्टेंस ऑफ जो भगवत गीता बा श्रीमद् भागवतम कहले ताकू जदी बुझी बोली हम सेटा को शेयर मत तार लिंक टा शेयर कर दे तार लिंक पाइबे जदी शेयर कर पारे देखंतु कना मु ताको देखि मत छोटो अक्षर हो तो मु पढी परोडाई प्ला कथा कहूची मते दरकार टिके आ टिके माने टिके फॉन्ट साइज टिके बड़ा हवा दरकार ताको जेमति माने ये रे माने लैपटॉप रे बा टिके लैपटॉप टा अछि त स्क्रीन टा बड़ा अछि टिके 16 इंच 15 इंच 16 इंच लैपटॉप अछि तो ताको जे देखि पारी टिके पढी होबो ताको टिके करि होबो बा ताको सेव करि होबो जदी ताले सेही बळे किछ गोटे सुविधा कॉलेज रे हम टिके बार बार पढिवा सुযোগ पाइबा ताले हमर भी टिके हटा बार बार इक्वल होबो तो मु सेटा को निवेदन करबी से टिके हमको शेयर करबे ग्रुप रे बा हमर जो मेल आईडी अछि मोर मेल आईडी भी अछि तो से मेल आईडी रे भी जति करि पार तारि भलो होता टिके मता निवेदन करबी सेठी करिवे ताले हमको बहुत
ଲାଗିବ ଆମେ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ କରିପାରିବା ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଆମ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ, କେହି ଅବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ। କେବଳ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଏରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି, ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଉ ମାନେ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭିକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏଠି ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସପ୍ତାହଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଟେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଯଦି ହବ ପାରିବେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ସମସ୍ତେ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଛି ଗାଇବା, ସ୍ୱର କାହାର କଣ କେମିତି ହବ ସିଏ ଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ବିଶେଷ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଗାଇଲା ମାନେ ଭଗବାନ ଭୀମଙ୍କ ଭଜନ ବି କହିଲେ, ଭୀମ କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ଗାଇବି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ତତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେତେବେଳେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ଇଏରୁ ଆସିଛ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦ କେମିତି କହିବି? ନା ମା ପାଖରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖରେ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମର ପିତା ମାତା ବି, ତେଣୁ ତୁମେବ ମାତା ସେ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମୋ ଦେବ ଦେବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟା ଗୋଟେ ପଢୁ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିବେନି, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ବେସୁରା ବୋଲି କହିବେନି। ସିଏ ଆମକୁ ଆମ କାନକୁ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ବେସୁରା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାନକୁ ଠିକ ସେ ସ୍ୱର ଠିକ ଠିକ ଜଣା ପଡେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନେ, ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱରର ଅଭ୍ୟାସ କରିନେ, ତେଣୁ ଆମ ବେସୁରା ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର ପୁଣି ସ୍ୱରକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କଥା, ପରିବାରରେ ଆଉ କଣ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ ଆମେ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିବା ନା? ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା, ଲୁଙ୍ଗି ତ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ହଉ ଧୋତି ହଉ ଗାମଛା ହଉ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେଇଭଳି କଥା ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସର୍ଟସରେ ବି କେତେବେଳେ ବୁଲୁଛେ, ସେଇଭଳି ନିଜ ଘରର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ କିଛି କିଛି ଗୁଣ କରି ଇଏ ଯାହା ବି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ମଝିରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଲେ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବସିକି ଖାଲି ମାନେ ଭଜନ କିଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କିଛି କିଛି ଗାଇବେ, ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା। ବାବା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ବା ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ଏସବୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଜନ ଗୁଡିକ, ଆମର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବି ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କଥା ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି କରାଯାଏ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଭାଗବତମ ପଢୁ ଯଦି ନ ହଉଛି, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ପଢିବା, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପଢିବା, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାର ତାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କି ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା ଅଛି, ହେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, ଆମେ ତ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଭଜନ ପଢିବା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଭାବୁଛି ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବା, କାହିଁକି ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2-3 ଜଣ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ।